السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع دیا کہ ہم لوگ مل بیٹھ کے قرآن پڑھ سکیں. آج ہم لوگ ریولیشن آرڈر کی سورہ 10 سورہ الفجر دیکھ رہے ہیں، یعنی 10ویں سورہ ہے ریولیشن آرڈر کے اندر، سورۃ الفجر. ہم سٹارٹ ہوئے تھے سورہ الگ سے، اور الگ سے آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہم نے لاسٹ سورہ لیل ختم کی ہے، اور اب ہم سورہ فجر شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج اس کا پہلا پارٹ ہم کوشش کریں گے کہ مکمل کر سکیں آیا 1 to 14 تک. پوائنٹس کوئکلی ٹو ریویو آر کے سب سے پہلے ایک جو اہم بات ہے سورہ سے پہلے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ اس سورہ کے نزول کے بعد وحی کے سیکوینس میں تھوڑا سا گیپ آیا، تو یہ جان رکھیے کہ اس سورہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنا کچھ ٹائم کے لیے بند ہوئی. اس سے پہلے یہ سورہ ہے، یعنی یہ 10ویں سورہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑے ٹائم کے لیے کچھ مفسرون کچھ ویکس لکھتے ہیں، کچھ منتھس کا ذکر کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک سے بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. سیٹنگ ہماری کیا چل رہی تھی اوور آل جو ابھی تک ہم نے پڑھا، اس میں بیسک سیٹنگ تو ہمیں کلیئر ہے، لیکن جو امیڈیٹ اس سورہ اعلیٰ، سورہ لیل اور سورہ فجر جو ابھی ہم پڑھنے لگے اور پچھلی 2 سورہ میں کیا ارد گرد کا ایٹماسفیئر تھا، ٹیمپریچر آف دا سوسائٹی کیا چل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ابو جہل یہ پلان کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دعوت کو کسی طرح روکا جائے، اور یہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی دشمنان اسلام یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت
आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने बात लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस्लाम को, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, उनको स्टार्ट में ही अब जब वो इतनी क्लियर बात करने लग गए हैं, दावत देने लग गए हैं और ये पावरफुल आहिस्ता-आहिस्ता हो रहे हैं, तो अब इन्हें बड़ी सीरियसली लेके हमें इनको क्या करना है, ख़त्म करना है, काटना है खुद से। इन्हें अम, इनकी पावर और इंटेग्रिटी जो है लोगों के नज़र में वो ख़त्म करनी है। तो उसके लिए अ, उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए। उस वक़्त सोसाइटी में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग इस्लाम लेके आए, जो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, ईमान जो लेके आए, वो 3 तरह की कैटेगरीज़ थी। एक एक वो लोग जो अम, आला मनसब पे फ़ाइज़ थे, इज़्ज़त वाले, मनसब वाले लोग थे, जो सोसाइटी में उनका एक नाम था, लोग उनसे मुशावरत करते थे और मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, जी। अ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रही थी कि 3 तरह के लोग जो थे वो ईमान लेके आए थे। पहले वो लोग जो इज़्ज़त और मनसब वाले थे, जिनको लोग उनकी एक पावर और इंटेग्रिटी थी, सोसाइटी में एस्टेब्लिश्ड थी और उनके लोग बहुत इकराम से उन्हें देखते थे। दूसरे वो टाइप थी जो जो लोग तिजारत मसलन करते थे और ट्रेड में थे और तीसरी टाइप वो थी जो बहुत गरीब लोग थे, कमज़ोर थे, स्लेव्स थे, जैसे हज़रत बिलाल थे जिनका ज़िक्र अभी पीछे ही सूरह लैल में गुज़रा। इसी तरह हज़रत अम्मार, हज़रत नहीं हज़रत सुहैब तो ही वाज़ वन ऑफ द रिच वन्स, हज़रत यासिर, हज़रत सुमैया, हज़रत ख़ुबाब बिन अर्त। तो ये जो लोग थे, ये तीसरी टाइप से ताल्लुक़ रखते थे जो जिनमें से बहुत मतलब इनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमज़ोर थी और इन्हें तो अब अबू जहल और जो उसके साथ के थे जो पॉलिटिकल हायरार्की थी, उन लोगों ने ये प्लान किया कि हम इन तीनों टाइप्स जो लोग हैं उनको हम मुख्तलिफ तरीके से क्या करेंगे, अज़ियतें देंगे, टॉर्चर करेंगे, उनको उनको एक्यूज़ करेंगे, उनका मज़ाक उड़ाएँगे, उनको नुकसान पहुँचाएँगे। तो ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सारे ही साथी क्या क्या हों कि सोसाइटी में उनका कोई मकाम ना रहे। हर तरीके से जो लोग भी इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मान रहे हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, जो कुरान की मान के चल रहे हैं, जो अल्लाह को अपना रब बना के उसकी बताई हुई कानून और बात के मुताबिक चलना चाहते हैं, उनको हमने क्या करना है, उन सबको हमने बायकॉट कर देना है और बायकॉट करने में उन्होंने ये इस तरीके से 3 कैटेगरीज़ बना के हर एक को अलग-अलग टारगेट किया। हर एक को उसकी किसी कैरेक्टर असैसिनेशन का उन्होंने अलग-अलग तरीका ढूँढा। तो बहरहाल ये ओवरऑल एक सिनेरियो था जो आपको पता होना चाहिए कि अ अ ओपोनेंट्स ऑफ इस्लाम, ओपोनेंट्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से बड़ा ऑर्गेनाइज़ होके बहुत प्लानिंग करते थे कि किस तरीके से किसी तरीके से इस्लाम, किसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी तरीके से कुरान की बात, किसी तरीके से अल्लाह को रब मानने की जो बात है, इस सारे के सारे इस पूरे कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया जाए।
इसको इसकी शक्ल खराब कर दी जाए नाउज़ु बिल्लाह, या इन उन लोगों की जो इसको फ़ॉलो कर रहे हैं उनको मिटा दिया जाए। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो सूरह आला, सूरह लैल और सूरह फ़जर अब जो है, ये तकरीबन यही कॉन्टेक्स्ट जो है वो चल रहा है बैकग्राउंड में। अब हम आते हैं सूरत स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका एक पहला जो पार्ट है सूरह का, जो एक पूरा होलिस्टिक थीम है, वो आया नंबर 1 टू आया नंबर 14 तक है। इंशाअल्लाह आज हम कवर करेंगे बिइज़्निल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अब हम आते हैं स्टार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट से पहले मैं एक बात आपको बताती जाऊँ कि आप लोग जो साथ आए हैं भी, जिन लोगों ने जॉइन किया है, प्लीज़ डोंट लीव टिल एंड। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं इसको टाइम के अंदर 2-4 मिनट ऊपर-नीचे करते हुए मैं इसको फिनिश करूँ। लेकिन ये आयत, इनकी कोई 2-3 तरह की तफसीर रन हो रही है, और इनका जिस्ट, जो असल इसका जो एसेंस है, जो इसकी रूह है, जो व्हाट सहाबा इकराम या कंपेनियंस ऑफ सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयत से क्या लिया, और आज वो लोग जो ओप्रेस्ड हैं दुनिया में कहीं भी, उनको इन आयत से क्या लेना है और किस तरीके से लेना है, वो बिल्कुल टुवर्ड्स एंड इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आई हैव टू टेल। इसलिए कि अगर मैं बीच-बीच में इसको तोड़-तोड़ के बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊँगी, तो फिर आपको पूरा का पूरा एक होलिस्टिक पिक्चर समझ नहीं आएगी। तो 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इंशाअल्लाह 2 डिफरेंट वेज़ पे पूरी तफसीर इन आयत की चलेगी, और एंड पे जाके दोबारा इसका एक जस्ट होगा कि सहाबा इकराम जब ये आयत नाज़िल हुई, ये पूरा इस थीम को वो कैसे देख रहे थे। उन्होंने इसके मानी को कैसे समझा, और वो लोग जो आज ऑप्रेस्ड हैं, वो पैलेस्टाइन में हों, वो उइगर मुसलमान हों, वो इंडिया में हों, वो कश्मीर में हों, वो पाकिस्तान में हों, वो किसी और मुल्क में हों, कहीं मायने कहीं पे भी हों, वो फिर दे कैन रिलेट टू दीज़ आयात, और स्पेशली उस तफ़सीर के उस पॉइंट को जो हम एंड में डिस्कस करने वाले हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, और फिर आपको बहुत सारे शायद क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलें कि दुनिया में जो ऑपरेशन है वो क्यों है, और उसको कैसे करना है, डील कैसे करना है, और अल्लाह को कैसे अपने सोर्स ऑफ एनर्जी बनाना है बिइज़्निल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। वल फज्र, पहले मैं क्विकली इन 3-4 आयत का आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता देती हूँ, उसके बाद फिर इनकी तफसीर पे आते हैं। वल फज्र, जो ये वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए नॉन है, इसका रूट वर्ड है अ जैसे नमाज़ फजर भी हम कहते हैं, तो ये जो फज्र है, इसका रूट वर्ड भी फजरा है, फ़ा जीम रॉ, और जो फजरा होता है, वो इसका मानी क्या होता है? एक्सप्लोजन, नोइज़ी, लाउड नोइज़ी एक्सप्लोजन, या एक्सप्लोड आउट ऑफ क्वाइट, या किसी खामोश चीज़ से किसी चीज़ का एक्सप्लोड होके बाहर निकलना, उसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फजरा, यानी कि किसी चीज़ को फाड़ के बाहर निकल आना। आपने लफ्ज़ सुना होगा फ़ाजिर या फ़ुज्जार, तो फ़ाजिर जो होते हैं ना, वो उनको भी फ़ाजिर इसीलिए कहा जाता है कि पीपल हू एक्सप्लोर द पीस और ट्रैंक्विलिटी ऑफ द दीन, यानी दीन इस्लाम को, कि जिस तरीके से अल्लाह ने बात बताई है, जो लोग उस बात को मानने के बजाय उस बात की, अल्लाह की बताई हुई बात की हद तोड़ के, फाड़ के बाहर निकल जाते हैं उस हद को, हुदूद को तोड़ के बाहर निकलते हैं, तो उनको फ़ाजिर कहा जाता है। तो क्या मतलब फ़ाजिर, यानी दे एक्सप्लोडेड आउट ऑफ द लिमिट्स ड्रॉन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाय दीन, तो उसको फ़ाजिर कहते हैं इसीलिए। एनीवेज़ फ़जरा ये हुआ, उसके बाद वलय वल वलयालिन, लयाल जो है, ये क्या है? लैल की जमा है। लैल क्या है? हम पीछे सूरह लैल में भी पढ़ चुके हैं, रात को कहते हैं। तो लैल वाहिद है, सिंगुलर है, लयाल जमा है, अ, रातों को कहते हैं। अश्र, अश्र, हमें उर्दू में भी हम ये बोलते हैं ना, अशरा, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, वो क्या होता है? सेट ऑफ 10 थिंग्स, यानी 10। तो ये अश्र 10, वश्शफ़अ वल वत्र, वश्शफ़ अ, जो शफ़अ है, ये इवन नंबर्स को कहते हैं, जुफ्त को, और वल वत्र, वत्र किसे कहते हैं? ताक को,
यानी ऑड, ऑड को कहते हैं। नंबर्स तो नहीं बोलेंगे हम यहाँ, लेकिन किसी भी चीज जो शफ है वो इवन और वत ऑड को। ठीक हो गया। और इससे नेक्स्ट जो आया था वल्लैली इदा यस्र, वल्लैली फिर रात का जिक्र आ गया। इदा यस्र, यस्र किसे कहते हैं? अ, ये इसकी थोड़ी सी तफसीर जब आयत की आएगी तो मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा वजाहत से बताऊंगी, लेकिन यस्र किसी चीज का चलते जाना या गुजरते जाना, ये यस्र होता है। ठीक हो गया। और एक आयत और देख लेते हैं, हल फी ज़ालिका कसमुल लज़ी हिज, हल क्या फी ज़ालिका, फी ज़ालिका इसमें कसमुल एक कसम है, कसमुल लज़ी, लज़ी उन लोगों के लिए या वालों कह लें, हिज्र अकल, अकल वालों के लिए। ये जो लफ्ज हिज्र है ना, ये इस्तेमाल होता है, आपको पता है, पत्थर के लिए भी, जैसे हिज्र अस्वद। तो इसकी भी थोड़ी सी वजाहत मैं तफसीर के अंदर ही बताऊंगी, वो एग्जैक्ट फिर आपको समझ आएगी। लेकिन बेसिकली हिज्र क्या होता है? अकल को कहते हैं, और मजबूत रुकावट को कहते हैं। तो अ, अ, इसका मैं जो क्या आपस में लिंक है अकल का और रुकावट का या मजबूत रुकावट का, तो ये मैं आपको थोड़ा सा लिंक तफसीर कराते हुए बताऊंगी। तो ये हमारी चंद आयात के थोड़े से मीनिंग हो गए। अब मैं तफसीर की तरफ आती हूँ इन आयात की, और फिर इंशाल्लाह कुछ डीप पॉइंट्स। वल फज्र, जैसे मैंने आपको बताया कि फज्र का मतलब क्या होता है कि एक्सप्लोजन या एक्सप्लोड आउट फ्रॉम क्वाइट। जैसे रात बहुत काम होती है ना, बहुत बिल्कुल पीसफुल होती है, और जब उसमें से सुबह की रोशनी निकलती है तो उसके साथ ही क्या होता है, सारे काम, सारे हसल बसल और काम धंधे, लोग निकल पड़ते हैं, सब कुछ शुरू हो जाता है। तो जैसे ही यानी आप रात की उस सिरेनिटी में से, उस जो कामनेस होती है उसमें से जब फजर फूटती है तो क्या होता है कि एज इफ दैट morning has exploded out, or the noise has exploded out or out of that calmness. तो ये एक इसका मानी है। ठीक है। और वल्लैल, और फिर नेक्स्ट आया वल्लैल इदा, सॉरी वल्लयाल, वलयाल इन अश्र, और अ, रातें अश्र 10, और 10 रातों की कसम। तो अब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दो आयात में कसम खा रहे हैं कि वल फज्र, कसम है फजर की, और कसम है 10 रातों की, तो अब मुफस्सिरून ने इस इनको मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से लिखा है। मैं दो तीन कैटेगरीज चीजें आपको जिक्र कर देती हूँ, और जो असल साहबा कराम ने इसके मानी क्या लिए थे वो फिर मैं टुवर्ड्स एंड बताऊंगी जाके इंशाल्लाह, इस पूरे थीम को डिस्कस करने के बाद। तो एक तफसीर में जैसे आता है कि वल फज्र, यहाँ पे किस चीज की कसम खाई गई है? क्या एक एक्सप्लोजन की कसम खाई गई है? नहीं, वो तो मानी बताया था। मतलब एक तफसीर में आया है कि फजर, नमाज फजर की कसम खाई गई है। और जो दूसरी आयत है वलयाल इन अश्र, वो किस चीज की कसम है? कौन सी 10 रातों की कसम खाई जा रही है? तो उसी पहली आयत में अगर नमाज फजर का जिक्र है तो दूसरी आयत में किस चीज का जिक्र है? रमदान की 10 रातों का जिक्र। इसी तरीके से ये एक तफसीर में आया। एक और कुछ मुफस्सिरून, एक सेट मुफस्सिरून है, उन्होंने ये लिखा है कि अ, 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 जो वल फज्र कसम है कौन सी फजर की, वो कहते हैं कि ये जनरल फजर नहीं है, ये फजर यौम नहर की है। यौम नहर क्या होता है? ईद वाले दिन को, ये जो बकर ईद होती है ना, 10 दुल्हिज्जा को, जो हाजी जब हज मुकम्मल करते हैं तो ईद मनाते हैं, यौम नहर कहते हैं उसको। तो यौम नहर की फजर की कसम खाई गई है, वो ये कहते हैं। और जो 10 रातों की बात है वो क्या है? What was revealed after, uh, I missed something.
थोड़ा सा इसको आप गौर से सुनेंगे तब आपको समझ आएगी। अगर आप ऑफ चैट जाएंगे, वो चैट में जाके आप इधर उधर सुनते रहेंगे तो आपको इन आयात के अंदर फिर ऑटोमेटिकली बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बातें मैंने पहले ही जिक्र किया है, तो फिर आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। क्वेश्चन रख छोड़िए, एंड पे इंशाल्लाह देखते हैं अगर अल्लाह ने चाहा तो। तो क्या हम कह रहे थे कि एक और जो कुछ बाज़ मुफस्सिरून ने उन्होंने ये लिखा है कि जो फजर का जिक्र है वो आम फजर नहीं है, वो यौम नहर यानी बकर ईद के फजर का जिक्र है। और जो 10 रातों की जिक्र है वो क्या है, वो दुल हिज्जा की 10 रातों का जिक्र है। और बाद मुफस्सिरून ने लिखा है कि 10 रातों से मुराद यहाँ पे जुल्हिज्जा के 10 दिन हैं। वो 10 दिन बहुत अहम है, और ये अक्सर लोग कोट करते होते हैं ये आयत, और 10 जुल्हिज्जा के 10 दिन आपको पता है जो जुल्हिज्जा के बाबरकत 10 दिन हैं, वो बहुत ही मुबारक हैं। उनसे ज्यादा बरकत वाला कोई दिन नहीं है जिसपे सूरज तुलू होता है, हदीस में ये आता है। तो कुछ मुफस्सिरून ये कहते हैं। और फिर जो वशफ़अ वल वत्र, वो जो है इसके बारे में क्या आता है कि इसके बारे में अच्छा, ये जो सेकंड आया है वल्लैली वलयालिन अश्र, इसके बारे में एक तफसीर में ये बात क्लैरिटी से लिखी हुई है कि ये कोई स्पेसिफिक नाइट्स नहीं है, इट कैन बी एनी 10 नाइट्स। क्योंकि वजह क्या है कि अगर आप नोट करें तो वलयालिन, ये लयालिन के साथ जो है तनवीन है, कसरतैन है, तो जब किसी चीज के साथ तनवीन आ जाती है ना, तो वो खास से उसे आम में कन्वर्ट कर देती है। यानी कोई खास रातें होती तो इनके साथ ये तनवीन या नकरा ना आता, नकरा या ये कॉमन नाउन के तौर पे ना आती, ये प्रॉपर नाउन होती। तो कुछ मुफस्सिरून ने ये कहा है कि ये कॉमन नाउन के तौर पे ये लफ्ज आया है, इसलिए ये स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक नाइट्स नहीं है, नकेरा है। दिस कैन बी एनी 10 नाइट्स। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने करम से किसी भी 10 नाइट्स की खा सकते हैं, और ये फिर हमें एंड में पता चलेगा कि सहाबा इकराम इसको कैसे देखते थे। उसके बाद जो है आ, जी नाजिया, इंशाल्लाह थोड़ा सा सब्र, ये इसका जवाब आपको एंड तफसीर के एंड में मिलेगा इंशाल्लाह। सो आज की तफसीर में थोड़ा सा सब्र साथ साथ चलेगा आप सब लोगों की तरफ से। आ, शफ और वत्र, नेक्स्ट जो आया है वो शफ वल वत्र, वो शफई वल वत्र। अच्छा, शफ जो है मैंने आपको बताया है कि किसे कहते हैं, जुफ्त को कहते हैं, यानी इवन को कहते हैं। जैसे इवन नंबर्स भी होते हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इवन वो चलते हैं। और ऑड क्या होते हैं, वत्र क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह। तो शफ और बद्र का लुगी मफहूम थोड़ा सा देख लेते हैं कि शफ क्या होता है। शफ, लफ्ज शफ का इतलाक उन अशिया पर होता है जिनमें नर और मादा की तामीज नहीं। और शफ के मानी एक चीज को उसी जैसी दूसरी चीज से मिला देना। एक चीज को, शफ का क्या मतलब है, एक चीज को उसी जैसी दूसरी चीज से मिला देना। और और उस इस तरह करके दो दो मिली हुई चीजों को शफ कहते हैं। तो दो दो चीजें जो कपल होके मिल के आती हैं उनको शफ कहते हैं। और जिसके साथ इस जैसी चीज ना हो उसे वित्र कहते हैं। यानी एक चीज जो बिल्कुल अकेली हो, उसके साथ उसके कोई चीज जोज के तौर पे या कॉम्बिनेशन के तौर पे ना हो, वो वित्र कहलाती है, वो अकेली कहलाती है, वो वाहिद कहलाती है, और ऑड कहलाती है। और जिसके साथ उसका पेयर बन जाए वो शफ कहलाता है। अच्छा, आप शफ से ही वर्ड जो है ना शफा भी है, यही जो वर्ड वो शफ आ रहा है ना, इससे इससे वर्ड शिफाअत, जो उर्दू में हम शिफाअत बोलते हैं ना, और जो आयतुल कुर्सी में भी हम शिफा पढ़ते हैं, वो इसी से है। तो शिफाअत में भी क्या होता है कि शिफाअत में दूसरे के साथ उसकी मदद या सिफारिश करते हुए हम मिल जाते हैं, यानी किसी दूसरे के साथ हम उसकी मदद में मिल जाते हैं, उसकी सपोर्ट में मिल जाते हैं, तो ये शिफाअत होता है। ठीक है। तो ऐसे ही रूट वर्ड को अगर आप जान लेना तो फिर उससे डिराइव होके क्या डिफरेंट शक्ल वर्ड की बनती है, फिर उसका मानी देखना आसान हो जाता है। ठीक है। तो
वितर की जो बेहतरीन मिसाल है वो क्या है? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुद की ज़ात है। आप देखिए कि अल्लाह की ज़ात वितर है, अल्लाह का नाम भी आता है, उस नाम से पुकारना भी चाहिए अल्लाह को कि अल्लाह वित्र हैं, यानी कि वो एक हैं, उनका कोई जोड़ा नहीं, उनका कोई स्पाउस नहीं, उनका कोई मददगार नहीं, उन जैसा कोई नहीं, दूसरा कोई उन जैसा मदद करने उनको नहीं आता। तो ये सारे मानी फिर जब हम अल्लाह के लिए अल्लाह का नाम अस्मा व सिफ़ात में से अल-वत्र बोलते हैं, तो उसका ये मानी होता है। और नमाज़ों में इसकी मिसाल नमाज़ मगरिब की फ़र्ज़ नमाज़ है कि आप देखिए कि वत्र की नमाज़ और जो मगरिब की नमाज़ है, ये थोड़ी-सी बात समझने वाली है अगर आप गौर करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अकेले हैं ना, तो उनके लिए जो काम किया जाता है, वो भी अल्लाह को ताक अदद में पसंद है। तो आप देखें कि अल्लाह ने ज़िक्र का सर्कल भी ताक रखा हुआ है कि आप 33 दफ़ा जैसे पढ़ने को कहा गया ज़िक्र को अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। तो इसी तरीके से जितनी भी हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं, अगर आप पूरे दिन की फ़र्ज़ नमाज़ों को देखें, तो मगरिब की 3 फ़र्ज़ की वज़ह से सारा नंबर फ़र्ज़ नमाज़ों का क्या हो जाता है? ऑड हो जाता है, इवन नहीं रहता। सिर्फ़ मगरिब के 3 फ़र्ज़ की 3 यानी वो भी वतर ताक ऑड नंबर में आया, तो सारे फ़र्ज़ की सीरीज़ क्या हो जाती है? ऑड हो जाती है। इसी तरीके से वाजिबात या नवाफ़िल या सुन्नत को ले लें, तो वो भी सारे के सारे ऑड हो जाते हैं। किस वज़ह से? वितर, नमाज़ वितर की वज़ह से। तो बहरहाल ये एक अलग लंबी फ़िलॉसफ़ी है कि ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे होता है ये और क्या इसके पीछे फ़िलॉसफ़ी है। बहरहाल अल्लाह के लिए जो चीज़ होती है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इसी तरीके से पसंद है। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कसम खा रहे हैं वश्शफ़ वल वत्र और आई स्वेयर बाय इवन एंड ऑड और ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है और आखिर में हम इसको थोड़ा वज़ाहत से टुवर्ड्स एंड देखेंगे कि सहाबाए किराम ने इससे क्या मानी लिया और कैसे। अच्छा अब आते हैं सॉरी इससे पहले एक आयत और करके फिर पूरे जिस पे आते हैं कि वल्लैली इज़ा यस्र और वल्लैली इज़ा यस्र और जब अ अ, और रात और कसम है रात की इज़ा यस्र जब वो गुज़र जाए। मैंने आपको कहा था कि यस्र को हम थोड़ा-सा देखेंगे। यस्र का देखिए कि यस्र का लफ्ज़ जो है यासीन रॉ उसका यही रूट है यसरा का लफ्ज़ रात को चलने के लिए मखसूस है कि रात रात के वक़्त रात का जो चलना होता है ना वो यस्र कहलाता है। तो रात को सफ़र करना जो है वो सारिया कहलाता है। अगर रात का कोई सफ़र हो रहा है ना तो उसको सारिया कहते हैं। और अगर आपको पता हो कि सूरह जो इसरा है उसमें भी सूरह बनी इसराइल जिसे कहते हैं सूरह इसरा, तो इसरा का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र था इसरा वल मेराज का, उसके लिए भी लफ्ज़ इसरा आया है, वो इसी से आया है और इसरा के मानी किसी दूसरे को रात के वक़्त सैर कराना। तो आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रात का सफ़र या रात की सैर करवाई, तो इसको इसरा कहा जाता है। तो बाज़ मुफ़स्सिरून ने ये लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इस आयत नंबर किसकी बात हो रही है? आयत नंबर 4 है, हाँ। आयत नंबर जो 4 है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस चीज़ की कसम खा रहे हैं कि कसम है उस रात की जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया। तो मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ मुफ़स्सिरून ने लिखी हैं और कुछ दूसरे मुफ़स्सिरून ने इस आयत नंबर 4 के बारे में लिखा है कि ये रात की कसम है जब वो खुद रुखसत होने लगे। यानी रात अपनी ज़ात में मैंने आपको सूरह कौन-सी में बताया था? सूरह तकवीर में आया था ना? वल्लैलि इज़ा असअस। वो असअसा का जब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था ना असअस कि आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता चलती है, स्लोली चलते, चलते-चलते मतलब रात आती है और वो रुकती नहीं है। वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है और चलते-चलते क्या करती है? अ, रुखसत हो जाती है। तो रात का जो रुखसत होना है, जो उसका यस्र है, जो उसका गुज़रने का जो प्रोसेस है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी कसम खा रहे हैं। तो कुछ मुफस्सिरों ने इस तरह इसको लिखा है। तो बहरहाल इन 4 आयत के बाद अब यहाँ पे एकदम इमीडिएट ये पॉइंट उठता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब ये क्या हो रहा है? हम क्या पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस चीज़ की ये मतलब कस्में खा रहे हैं, ये ओथ्स किस चीज़ की ले रहे हैं? तो आप
यहाँ पे अगर आप अब जो लोग यूजुअली तफसीर पढ़ते हैं ना, जैसे कुर्तुबी हो गई, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर बगवी हो गई, तफसीर इब्न कसीर हो गई, तफसीर फ़ी ज़लालिल कुरान हो गई, इसी तरीके से तफसीरुल कुरान हो गई, मतलब नेम है काफ़ी ज़्यादा तफसीर में, सब तफसीर में ना मेजॉरिटी ऑफ यानी तफसीर जो सारे मैंने नाम लिए इनमें तो हैं ही हैं और भी मेजॉरिटी में ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि फजर से फजर की नमाज़ का मतलब है कि फजर की नमाज़ की कसम खा रहे हैं और 10 रातों से रमज़ान की आखिरी 10 रातें या फिर ज़िल-हिज्जा के 10 जो दिन हैं उनकी बात की जा रही है। लेकिन अगर आप गौर करें, तो ये सूरत तो मतलब बिल्कुल शुरू के टाइम में नाज़िल हुई है। अभी पहली 10 सूरतें नाज़िल हो रही हैं, ये 10वीं सूरत है। ये शुरू का अभी 1 से 2 साल के दरमियान का टाइम चल रहा है। इससे कम थोड़ा-सा कम या थोड़ा-सा ऊपर हो सकता है। तो ये तो इतना टाइम अभी गुज़रा और वही के स्टार्ट में तो नाज़िल हुई, तो उस वक़्त तो नमाज़ों का अभी फ़र्ज़ भी नहीं हुई थी। तो जब नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं हुई थी, तो नमाज़ की बात तो सिर्फ़ एक ही बार यहाँ से पहले हुई है और वो सूरह मुज़म्मिल में रात की तहज्जुद की नमाज़ की बात हुई थी और उसमें भी उस नमाज़ में भी जैसे आज हम नमाज़ को समझते हैं ना कि क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, वो अंडरस्टैंडिंग उनके पास नहीं थी। उनके पास सिर्फ़ क्या थी, मैंने उस वक़्त भी आपको सूरह मुज़म्मिल में भी बताया था कि उस वक़्त नमाज़ का सिर्फ़ यही हुक्म था कि स्टैंड अप एंड रीड द कुरान, जो कुरान नाज़िल हो रहा है, जो कुरान का नुज़ूल है, वो उस वक़्त सिर्फ़ यही हुक्म था। उससे पहले नमाज़ को इस तरह नहीं जाना जाता था। तो पहले 2-3 साल मतलब जब तक नमाज़ फ़र्ज़ का जो कि जाके मेराज के बाद हुई है, मेराज के ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ हुई है, तो उससे पहले नमाज़ का ये वाला तरीका तो नहीं पता था सहाबाए कराम को। सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था। तो फिर फ़जर का कैसे ज़िक्र हो सकता है पहले 1.5 साल या साल की या 2 साल की वही के अंदर अगर सूरह फ़जर नाज़िल हुई है और उसमें अगर मुफ़स्सिरून ये लिख रहे हैं कि ये फ़जर की नमाज़ की कसम है, तो बहुत सारे मुफ़स्सिरून फिर ये भी कहते हैं कि जब ये अभी नमाज़ फ़जर तो अभी मतलब आई ही नहीं थी। उसका ज़िक्र तो था ही नहीं। अभी तो इस्लाम में उतनी-सी चीज़ें जो आज तक हम आयात पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें हमें पता चली हैं, उस सहाबाए कराम को भी उतनी-सी पता थी, तो उसमें नमाज़ का ज़िक्र नहीं है, ये 2 रकअत या सुन्नत और 2 फ़र्ज़ की बात नहीं हो रही। ये ओवरऑल मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट बात चल रही है। ना ही यहाँ पे नमाज़ फ़जर की बात हो रही है, ना ही यहाँ पे वितर से मुराद इशा की नमाज़ के वितर की बात है और ना ही 10 रातों से मुराद रमज़ान या ज़ुल्हिज्जा के दिन और रातों की इम्पोर्टेंस की बात हो रही है। और साथ में ही ना ही जो वलयालिन ये जो वल्लैलि इज़ा यस्र ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र की बात हो रही है क्योंकि मेराज का सफ़र तो हुआ ही नहीं था। पहले 2 साल, 1.5 साल में तो ये आयत नाज़िल हुई थी तो उस वक़्त तक तो मेराज का सफ़र हुआ ही नहीं था। तो जिन मुफ़स्सिरों ने ये बात लिखी फिर ये वो एकदम ज़हन में आता है ना कि ये बातें तो उस वक़्त हुई नहीं थी। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या फिर उन्होंने सारा कुछ गलत लिखा? नहीं, गलत नहीं लिखा इसलिए कि कुरान रहती दुनिया तक है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो करम करें, फ़ज़ल करें जिस-जिस पे वो डिफ़रेंट-डिफ़रेंट मानी लिखते हैं। लेकिन हाँ, जो कॉन्टेक्स्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो यही है कि इनके ये मानी नहीं बनते। तो फिर क्या मानी बनते हैं? इसके लिए थोड़ा आपको एक और सब्र करना पड़ेगा, वो हम टुवर्ड्स एंड देखते हैं। आयत नंबर 5 देखते हैं कि अल्लाह खुद इसके बारे में क्या फ़रमा रहे हैं और जो एग्ज़ैक्ट जिस था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने इन आयत को कैसे देखा, वो तो एज़ आई सेड के 14 आयत नंबर 14 के बाद इंशाअल्लाह बताऊँगी। हल फ़ी ज़ालिका कसमुल लज़ी हिज्र फिर अगली आयत, हल क्या फ़ी ज़ालिका क्या इसमें कसमुल एक बड़ी कसम है लिज़ी हिज्र अक्ल वालों के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड माय ओथ यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब ये पूछ रहे हैं कि भई ये जो ऊपर कस्में आई हैं हल फ़ी ज़ालिका कसमुल लज़ी हिज्र कि क्या इस कसम में अक्ल वालों के लिए कुछ है? इन कस्में ये जो ऊपर हैं
عقل والوں کے لیے اس میں کوئی بات ہے یا کوئی ہنٹ ہے یا کوئی اشارہ ہے، یا یہ بس آپ کو لگتا ہے کہ بس سورت ایک قسموں سے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی ہی صورتیں قسموں سے شروع کرتے ہیں، تو بس یہ ایک اور صورت ہے، کوئی بات نہیں، اس میں بھی کیا ہو گیا، اٹھا لی قسم، جیسے کہ اکثر مفسرون اور تفسیروں میں صرف ان کو قسم لکھ کے آگے لے جایا جاتا ہے۔ تو لیکن اللہ یہاں خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی قسمیں تو اوپر اٹھائی ہیں، تو کیا عقل والوں کے لیے کوئی ہنٹ ہے، اس کے اندر کوئی سائن ہے؟ تو یہاں پہ جو ہجر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا مطلب میں بتانا چاہوں گی، وہ بھی میں ساتھ بتا دیتی ہوں، جو آخری ورڈ ہے اس آیت کا۔ ہجر بامانی پتھر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہجر اسود بھی ہم یوز کرتے ہیں، مطلب ہم بولتے ہیں لفظ، تو ہجر بامانی پتھر، اور ہر ٹھوس اور سخت چیز جو آڑ کا کام دے سکے اس کو کہتے ہیں، جو آڑ کا، کوئی بھی ٹھوس چیز، کوئی بھی بہت سخت چیز جو آڑ بن سکے، یعنی کسی چیز کا درمیان، جیسے دیوار ایک آڑ کا کام کرتی ہے، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، تو جو آڑ کا کام کر سکے اسے ہم ہجر کہتے ہیں۔ اور عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں، وہ اس لحاظ سے کہ وہ بھی ہر اس چیز کو جو نقصان دہ ہو اس سے روکنے میں یا اس سے آڑ یا اس سے پیچھے کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ جیسے ایک عقل بھی انسان کو جیسے نفسیاتی بے اعتدالیوں سے روکتی ہے، یا کچھ برے راستوں سے یا برے ڈیسیجن سے روکتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ بھی آپ کو ایک مضبوط رکاوٹ بن جاتی ہے آپ کے اور آپ کی نفسیاتی بے اعتدالیوں کے درمیان یا برائیوں کے درمیان۔ تو اس لیے ہجر اس عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور دی ہجر یعنی صاحب عقل یا عقل مند، تو دی ہجر قسم الذی، جو یہ دی ہے، صرف زال چھوٹی یہ زی جو ہے نا، یہ دی ہجر عقل والوں کے لیے۔ تو کیا ہم اب کہہ رہے ہیں، اب کیا ہمیں سمجھ لگی کہ I want someone with intelligence, with brain who can understand what I mean by these oaths۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ ٹیک دیز اوتھس لائٹلی، کوئی ہے، کوئی ہے جو ان قسموں میں سے یہ قسم، یہ جو لفظ قسم بنایا ہے، ایک بڑی قسم، کہ کوئی ہے جو اس اوتھ کو سیریسلی لے اور اس پہ سے کوئی سمجھ اور ڈیپ معنی نکالے، کوئی بات نکالے، کوئی عقل والوں کے لیے اس کے اندر کوئی ہنٹس ہیں، موجود ہیں؟ اور پھر یہ کہنے کے بعد اللہ خود ہنٹ دے رہے ہیں کہ اچھا چلو عقل والو، میں تم لوگوں کو ہنٹ دیتا ہوں، اب تم اس کو ڈی کوڈ کرو کہ یہاں بات کیا چل رہی ہے۔ تو پہلا ہنٹ کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اسکرین کو پلیز چھوٹا کر دیجئے تاکہ اگلی آیت نظر آئے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم کیا نہیں، ترا، ترا پہلے بھی یہ لفظ آیا، کہاں آیا ہے؟ رأیت، رآ، کافی ساری جگہوں پہ آیا ہے۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا پیچھے کا مطالعہ کیا کریں پلیز۔ تو یہ وہیں سے ہے، رآ سے مضارع ہے ترا، تو علم ترا، آپ نے دیکھا، کیفا کیسے، فعلا کیا، ربو کا آپ کے رب نے، بعاد عاد کے ساتھ، یعنی اب جی ایگزیکٹلی سورہ علق میں الرآہ استغنا، جی جزاکم اللہ خیر۔ تو اب کیا آیت ہے، اب پہلا ہنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے رہے ہیں کہ کیا تم نے ڈڈ یو سی کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا کیا عاد کے ساتھ؟ عاد کون تھی؟ قوم عاد، عاد ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ہود علیہ السلام کو عاد کی طرف بھیجا تھا۔ اور سورہ جو قرآن میں سورہ ہود ہے اور سورہ احقاف ہے، ان دو میں عاد کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے۔ اللہ نے چاہا جب ہم گئے سورہ ہود کے اوپر تو ہم انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو عاد ایک ایسی سویلائزیشن تھی، یہ کوئی چھوٹی سی قوم نہیں تھی، پوری سویلائزیشن تھی، جیسے آج ہم سویلائزیشنز کی بات کرتے ہیں، اپنے ٹائم کی سویلائزیشن تھی یہ، جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ عاد کے دو بڑے قبیلے تھے،
اور ان میں سے ایک قبیلہ کیا کہلاتا تھا؟ ارم. یہ جو اگلی آیت ہے نا، ارم ذات العماد، ارم، تو یہ جو ارم ہے، یہ ارم اس کا ایک قبیلہ تھا عاد کا. ارم ذات العماد، ارم قبیلے والے، ذاتی، ذات العماد ستونوں والے. عماد کیا ہوتا ہے؟ عمد، عمد ستون کو کہتے ہیں، پلر کو کہتے ہیں ستون، ٹھیک ہے. اور اس کی جمع ہے، عمد کی جمع کیا ہے؟ عماد. ارم ذات العماد کے جو عاد کا جو قبیلہ ارم تھا، بڑے بڑے ستونوں والا تھا. They had no match in whole world. They used to convert energy from wind, sun, soil to move the things. ان کے بارے میں، سویلائزیشن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی ایڈوانسڈ ان کے پاس اس وقت، یعنی جس دور کے یہ تھے اس وقت کی ایسی ایسی چیزیں ان کے پاس تھی، ایسی ایسی ایڈوانسمنٹس تھیں کہ جو اس وقت کے اس ٹائم ایرا میں کسی کے پاس نہیں تھی، کسی کے پاس نہیں تھی. اور وہ کس کس طریقے سے انرجی حاصل کرتے تھے، اور کس کس طریقے سے وہ کنورٹ کرتے تھے انرجی یوز کرنے کے لیے، ونڈ سے اور سوئل سے اور سن سے. بہت کچھ تھا اس کے بارے میں، بہت ساری ڈاکیومنٹریز اور بکس لکھی گئی ہیں. ابھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. رائٹ ناؤ اللہ جسٹ ان سے کچھ سویلائزیشنز کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس سے کچھ خاص مقصد ہے، اس لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. اللہ تھی، اور پھر خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سویلائزیشن اتنی بڑی تھی، اتنی میچلس تھی کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ التی وہ جو لم نہیں، یخلق پیدا کیا گیا، مثلها ان جیسا، فی البلاد شہر میں، کوئی کسی شہر میں، بلاد شہروں میں، سوری جمع ہے، بلد کی جمع بلاد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کوئی ان جیسی کوئی دوسری مثال نہیں تھی. یعنی قوم عاد کی طرح کی، اور اسپیشلی جو اس میں ارم جو تھی، عاد ارم جو تھی، وہ جو ستونوں والے تھے، ان جیسا کسی شہر میں کوئی مثال نہیں ملتی تھی. جو what they have achieved, nobody was able to achieve anything close to that even. اتنی ان کی high achievements تھی of their own times. اور پھر here Allah is telling us that I have dealt with the people of Ad and I have removed that whole civilization despite their strong power. اب یہ پہلا ہنٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں کس کے بارے میں، کہ عاد وہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ ان جیسا بڑے بڑے ستونوں کو بنانے والے، بڑی بڑی کارونگ اور عمارتیں بنانے والے، ایسی پاور، ایسی گرینڈر، اور جو مور پاورفل دین روم اینڈ پرشینز آتا ہے کہ یہ ان سے زیادہ پاورفل تھے. تو ایسا گرینڈر کسی کا نہیں تھا. تو یہ پہلا ہنٹ ہے اللہ نے دیا ہے کہ یہ ایسی سویلائزیشن تھی، اور ان کی اتنی اسٹرینتھ تھی کہ شاید کسی دوسرے شہر میں ان کی مثال ان جیسی نہیں ملتی تھی. لیکن جب وہ ظلم اور ٹائرنی پہ اترے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کیا، وہ آگے آیت آ رہی ہے، وہ اس پہ ذکر آئے گا. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. اس کے بعد جو نیکسٹ آیا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پھر کس قوم کی بات ہے؟ پھر ثمود کی بات ہے. ثمود کون تھی؟ یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی. سیم تھنگ ہیپن ٹو دیم. ان کا ذکر کیا ہے؟ یہ اب دوسرا ہنٹ ہے. یہ آپ ہنٹ لکھتے جائیے. ہنٹ 1 ایک آیا میں گزرا، آیا نمبر 6 تھی، ہاں آیا نمبر 6 میں، 6 7 اور 8 میں ایک ہنٹ گزرا. اب نیکسٹ قوم کا یہ ہنٹ 2 ہے کہ پھر وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور جو قوم سمود تھی، الَّذِينَ وہ کیا تھے؟ وہ لوگ کیا تھے؟ جابوا الصخر بالواد، وہ کیا کرتے تھے؟ جابو تراشتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کارو کرتے تھے. جابو کس سے ہے؟ جیم واو با، اس کا روٹ ورڈ جیم واو با، جوب اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ ورڈ جو ہے یہ 43 ٹائمز آیا ہے قرآن میں 5 ڈفرینٹ فارمز کے اندر. اور الصخر کسے کہتے ہیں؟ چٹانوں کو کہتے ہیں.
بالواد وادی میں، وادی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اور قرآن میں یہ لفظ آتا ہے اور جگہوں پہ بھی بالواد وادی میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کس کی بات کر رہے ہیں کہ سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی وہ وہ کس چیز میں ان کی کیا اسپیشلٹی تھی؟ وہ کارونگ کرتے تھے اور ایسی ایسی مطلب ایسی کارونگ نہیں جیسے آج ہم کارونگ سمجھتے ہیں، مطلب کارو کر کے پوری پوری بلڈنگز، پورے پورے شہر، ماؤنٹینز اور کلفس کو اور چٹانوں کو تراش کے اندر ہی اندر پورے پورے شہر کھڑے کر دیتے تھے اور اتنی مطلب ان کی پاور ان کی پاورفل ہونے کی صرف ایک نشانی کا ہی ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ پہاڑ ہم اتنی ایک مائٹی چیز ہے نا، اس کو وہ اس سے اپنی مرضی کی چیزیں بناتے تھے، اس سے اپنی مرضی سی چیزیں بناتے تھے۔ تو اور ان کا سمود کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مسکن جو تھا وہ وادی القرا تھا، وادی القرا جو مدینہ اور تبوک کے راستے میں پڑتا ہے، مدینہ اور تبوک کے راستے میں وادی القرا پڑتی ہے، یہ ان کا جائے مسکن تھا، یعنی کہ رہنے کی جگہ تھی۔ اور یہ لوگ بھی بہت ہی طاقتور قوم تھی اور پھر قریش کو بتایا۔ اب آپ امیجن کریں کہ ہم نے شروع میں بالکل سٹارٹ میں کس بات سے میں نے آج آپ کا سٹارٹ کروایا تھا تفسیر کا، کہ جو ابو جہل تھا، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، شریک بن اخنس، اس وقت تک ابو سفیان جو بعد میں اسلام لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سارے یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ سارے کے سارے پلان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اللہ اور اللہ کے دین کو مٹانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو مٹانا ہے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ بھی اسلام لے کے آ رہے ہیں ان کو کس طریقے سے ڈی فیم کرنا ہے، ایکیوز کرنا ہے، ان کو بالکل ہیلپ لیس کر دینا ہے۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ قریش کو یہ آیات اور اس سنیریو میں یہ آیات نازل کی جا رہی ہیں اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی سویلائزیشنز تھیں وہ گزری، اور یہ جو سمود کی بھی تھی یہ بھی بہت بڑی سویلائزیشن تھی اور یہ بھی سرکش لوگ تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے زلزلے اور چیخ کے عذاب سے ان کو ختم کیا تھا۔ تو اب اور اس کے بعد جو نیکسٹ آیا ہے وہ تیسرا ہنٹ ہے، تیسرا ہنٹ ہے کس کے لیے؟ ذی ہجر کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ اور پھر عقل والے اس سے کیا ڈی کوڈ کریں گے وہ ہم انشاءاللہ اینڈ میں دیکھتے ہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور تیسری بڑی سویلائزیشن، تیسری بڑی پاور جس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کیا ہے کہ وَفِرْعَوْنَ، اور فرعون ذی الأوتاد، میخوں والا۔ اچھا فرعون کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ فرعون جو تھا نا وہ ٹائٹل آف دا کنگ آف ایجپٹ، فرعون کوئی خاص بندہ نہیں تھا، فرعون ٹائٹل آف دا کنگز آف ایجپٹ تھے، مصر کے جو کنگز تھے وہ فیرو کہلاتے تھے، فرعون کہلاتے تھے۔ اور جو یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اس کا زیادہ تر ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اس کا نام رامسیس تھا، اور یا اس کو میخوں والا کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرعون کا کیریکٹرسٹکس بتایا اس خاص فرعون کا کہ وہ کیا کرتا تھا، میخوں والا تھا، اور مختلف مختلف مفسرون نے اس کو مختلف طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ ایک دو چیزیں میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اور پھر ہم اس کو اینڈ میں زیادہ کلیئرٹی سے دیکھ لیں گے۔ جو فرعون کو میخوں والا کہنے کی بھی کئی توجیہات بیان کی گئی ہیں، مثلا ایک یہ کہ میخوں والے، میخوں یعنی کیل، یہ جو لفظ آیا ہے نا اوتاد، ایک کیل کو اوتاد جمع ہے اور یہ میخوں کو بولتے ہیں۔ تو میخوں والے سے مراد اس کی سلطنت کی مضبوطی ہے، جیسے اس سلطنت کی جڑیں میخوں کی طرح زمین میں ٹھونک دی گئی ہوں، یعنی اس کی جو کنگڈم تھی وہ اتنی مضبوط تھی، اتنی مضبوط تھی کہ جیسے اس کے روٹس ہوں،
تو उसको मेखों से तशबीह दी गई है। दूसरा ये कि मेखों से मुराद उसकी अफ़वाज और लाओ लश्कर थे कि जिनके बलबूते पर वो अल्लाह का बागी और मद्दे मुकाबिल बन के बैठ गया था। और तीसरा ये कि जब उसके लश्कर हरकत करते थे यानी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते तो खैमों को नस्ब करने के लिए बड़ी-बड़ी कीलें या बड़ी-बड़ी मेखें इस्तेमाल करते थे। और चौथी ये बात है यानी ज़िल औताद जो इसलिए भी कहा जाता है कि ये कि जब उसने किसी को सूली चढ़ाना होता था तो वो उसे तख्त यानी वो उसको किसी ख़ास तख्त पे चढ़ा के वो फांसी नहीं चढ़ाता था बल्कि उसके हाथ और पैरों में ये कीलें ठोंक देता था और ये उसकी बहुत ज़्यादा संगदिली पे भी दलालत करती है। तो अ तो ये चंद चीज़ें चंद मुफस्सिरून ने चंद बातें लिखी हैं कि ज़िल औताद फ़िरऔन के साथ ज़िल औताद क्यों आया है? मेखों वाला किस-किस बिना पे उसको कहा जाता था। बहरहाल सबसे जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो सबसे ऑप्रेसिव फ़िरऔन जो मशहूर था वो मूसा अलैहि सलाम के वक़्त पर था, जिसने बनी इसराइल को टॉर्चर किया था और उसने उनके सारे लड़कों को ज़िबा कर दिया था। तो ये ऐसे सख्त अम अ, बहुत ज़्यादा सख्ती की तरफ और उसके दलालत करती हैं ये ज़िल औताद का लफ्ज़। और फिर कुछ लोगों ने लिखा है कि ये जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट के अंदर, उसकी तरफ भी पॉइंट है। और बहरहाल इसकी बहुत सारी तफसीरें कुछ लेटेस्ट जो मुफस्सिरून हैं और कुछ स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट तफासीर भी की हैं। यू आर ओपन टू लिसन और रीड लेकिन आपको जब कॉन्टेक्स्ट क्योंकि हम तो रेवलेशन ऑर्डर में देख रहे हैं, तो हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ रहना है कि सहाबा किराम ने एक्चुअली इन आयात को कैसे लिया है। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में एक पूरी पिक्चर और एक इसका इंशाल्लाह वो करेंगे कि ओवरव्यू इन आयात का पूरा क्या बनता है और किस तरह ये सोर्स ऑफ एनर्जी बनी तमाम ओप्रेस्ड वन के लिए। तो वो फ़िरऔन ज़िल औताद और तीसरा हिंट ये है कि फ़िरऔन के बारे में बात और फिर इन सब के बारे में कि अल्लज़ीना तगौ फ़िल बिलाद अल्लज़ीना जिन्होंने तगौ फ़िल बिलाद अ, तगौ सरकशी की फ़िल बिलाद शहरों में कि सारों के सारों ने ही जो पीछे मेंशन हुए और इनके अलावा भी जो लोग भी सरकशी करते हैं शहर में अ ये सारे के सारे मतलब ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको देख नहीं रहे। आगे आयत में ये मेंशन होगा। अल्लज़ीना तगौ तगौ क्या होता है? मैं ये लफ्ज़ पहले भी गुज़रा है। मैंने आपको बताया है कि इसका रूट वर्ड जो है तौ गॉइन या है। तौ गॉइन या ये 39 टाइम्स कुरान में आया है इस रूट वर्ड के साथ डिफरेंट वर्ड्स आए हैं और 8 फॉर्म्स में आए हैं जैसे तागी तागूत जो कुरान में लफ्ज़ आता है वो भी इसी से है तौगिया वो भी इसी से है तुगयान आता है कुरान में तुगयान तो ये सारे वर्ड एग्जैक्ट इसी रूट के साथ आपको तौ गायन या के साथ ही मिलेंगे सो मोस्ट ओप्रेसिव वंस आद और समूद भी ओप्रेसिव थे पर सबसे बढ़ के जो टायरेंट था वो कौन था वो फिरौन था इन सारों ने क्या किया फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़अक्सरू फिर इन्होंने कसरत की किस चीज़ की फ़ीहल फ़साद इस करप्शन में फ़साद में ये सोर्स ऑफ करप्शन थे तो क्या अब असल चीज़ क्या है कि जो हमें चीज़ जाननी है कि यू कांट फाइट करप्शन अंटिल यू डोंट नो द कॉज़ ऑफ करप्शन। तो करप्शन विल प्रिवेल अंटिल एंड अनलेस यू रिमूव दैट थिंग दैट कॉजेस करप्शन। तो फ़िरौन फ़साद की रूट कॉज़ में से था। तो और हर तरह के फ़साद और शर को प्लान करता था और फैलाता था। और शर और फ़साद का मास्टरमाइंड जो था ना वो फ़ैरो था या फ़िरौन था। बहरहाल अब सबसे अहम बात क्या है यहाँ पे कि ऑल 3 हिंट्स जो तीनों हिंट्स दिए गए वो सबसे पहले आद का हिंट, उसके बाद समूद का हिंट, उसके बाद फ़िरौन का हिंट और इन सारों का ज़मीन पे सरकशी करना, अल्लाह की बताई हुई हद को तोड़ के फाड़ के बाहर निकल जाने वाले
سرکشی کرنے والے، فساد کرنے والے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ فصب علیہم ربک صوت عذاب. فصب تو ہنڈیل دیا، تو برسایا، ہنڈیلا، علیہم ان پر، رب کا آپ کے رب نے، سوتا کوڑا، عذاب عذاب کا. ہم اچھا نیکسٹ پیج، اگر خوشنما آپ ہیں تو پلیز نیکسٹ پیج کر دیں گے. تو فصب علیہم ربو کا سوتا عذاب، تو برسایا ان پر آپ کے رب نے کوڑا عذاب کا. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اچھا سوتا کو ایک لفظ دیکھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ پہلے بلکہ فصبا، فا ہٹا دیجئے، فا تو یا پھر کے لیے آتا ہے. صبا کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ سواد بابا، سواد بابا. اور یہ جو صبابا ہے، یہ ورڈ قرآن میں 5 اس روٹ کے ساتھ 5 ٹائمز آیا ہے، اور اس کی 2 ڈفرینٹ فارمز میں پایا جاتا ہے قرآن کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برسایا. اور سوتا کیا ہے؟ سوتا کوڑے کو کہتے ہیں، اور یہ ورڈ پورے قرآن میں اسی جگہ آیا ہے، اور کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے اس کو الگ سے ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیں کہ یہ پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ has جو رب ہے اس نے whipped you یا lash you، کیا کس چیز کے ساتھ؟ سوتا عذاب. اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا ان کے اوپر. کن کے اوپر؟ یہ جو سرکشی کرنے والے تھے. کیسے کیسے اللہ نے برسایا ان کے اوپر عذاب؟ کسی پر پتھر کا عذاب آیا، کسی پر آندھی بھیجی، کسی پر چیخ نے کسی کو آ کے پکڑ لیا، کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا. ہمیں پتا ہے کہ پچھلی قوموں پہ کیسے کیسے عذاب آئے. اللہ یہاں پہ اس کا یاد دہانی کروا رہے ہیں. کیوں کروا رہے ہیں؟ کس کو کروا رہے ہیں؟ یہ آپ دیکھ لیجئے. قریش کا کانٹیکس چل رہا ہے. قریش کیا کر رہے تھے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ، اور وہ کس کس حد تک جا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فجر نازل کر کے یہ آیات اسپیشلی یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ ہی نہیں ہیں بڑے، آپ ہی نہیں ہیں پاورفل، آپ ہی نہیں ہیں پولیٹیکل مائٹ، آپ ہی نہیں ہیں اتھارٹی، آپ ہی نہیں ہیں ارباب بنے بیٹھے. پہلے بھی سویلائزیشنز آپ سے ہزاروں گنا زیادہ سویلائزڈ، سو کالڈ سویلائزڈ سویلائزیشنز گزر چکی ہیں، جو سمجھتی تھی کہ ان سے بڑھ کے کوئی نہیں، ان سے اوپر کوئی نہیں، لیکن وہ سرکشی کرنے والے بنے. وہ اپنے جب اللہ کے پیغمبروں نے ان کو آ کے اسلام کی، اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی بات بتائی، تو وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے تھے. تغو سرکشی کرنے والے تھے، فساد کرنے والے تھے. تو ایسوں کے لیے پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل قریش کو بتا رہے ہیں، اور آج ہمیں بتا رہے ہیں، ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو پھر اللہ کا جو کوڑا ہے عذاب کا، وہ ایسے برستا ہے، یہ ہوتا ہے. ان ربک لبالمرصاد. ویری ویری سگنیفیکنٹ آیا. اور پھر پورا تھیم انشاءاللہ ہم کرتے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد. پہلے اس لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، بالمرصاد. مرصاد جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے رسدہ، رو سود دال. رسدہ یرسدو رسدن، کسی کے راستے میں اس پر حملے کے انتظار میں بیٹھ جانا، یعنی کسی خاص راستے میں یا کسی کے راستے میں جا کے بیٹھ جانا. کس نیت سے؟ حملے کی نیت سے. اس کو رسدہ، اس کانسیپٹ کو رسدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان بے شک ربا کا، رب آپ کا، لبالمرصاد البتہ گھات میں ہے. He is in deep observation. اب مطلب یہ لفظ کیونکہ رب کے ساتھ آیا ہے، لیکن ویسے اگر اس لفظ کو بالکل الگ کر لیں تو آپ گھات لگانا آپ کو ذہن میں ایک دم کیا آتا ہے؟ آپ نے کبھی آبزرو کیا ہے وہ بلی کو؟ بلی جب بہت چپکے سے اپنے کسی شکار کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو پہلے ٹارگٹ کرتی ہے بڑے غور سے، اور پھر دیکھتی ہے کہ میں کتنا کلوز، بڑے سٹل طریقے سے جا سکتی ہوں، غیر محسوس طریقے سے، اور اس کے بعد میری کتنی کوئی میری جمپ ہوگا جو میں ایگزیکٹلی جا کے چیز کو دبوچ لوں گی تاکہ یہ ہاتھ سے جا نہ سکے. تو وہ بیسیکلی گھات لگاتی ہے. یہ ورڈ ایکچولی اس طریقے کا ہے کہ یو آر
اتنے ایप्ट ہوके इतने एक्यूरेट तरीके से आपकी मेजरमेंट है कि अब आप हाथ से जाने ना दें चीज को। तो वो एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। लेकिन आप सोचें कि अल्लाह की एक अदना सी क्रिएशन की ऐसी घात होती है। और फिर अगर आप कैट फैमिली के जो बड़े बहन भाई हैं, यानी लायंस को देख लें, टाइगर्स, लेपर्ड्स और जो जितने भी ये कैट फैमिली है ना सारी, तो जितनी भी इस फैमिली में सारों को देख लें, जो डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं वो देखते हैं कि शेर भी कितनी बारीकी से, मतलब वो जब घात लगा के बैठता है और वो अटैक के ऊपर कैसे जाता है वो। तो ये एक मिसाल है घात की। तो ये तो अल्लाह की इतना टाइनी सी क्रिएचर्स हैं। तो आप इमेजिन करें कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद किसी को देख लें कि अब ये कोई सरकशी कर रहा है, इन्न रब्बक लबिल मिरसाद, कि अल्लाह घात लगा के बैठे हैं। If anyone come with any sort of oppression, if anyone come with any sort of, वो जो कोई आता है वो ऑपरेशन करते हुए आता है, जुल्म के साथ आता है, वो फिरौन हो, वो आद हो, वो समूद हो, एनीथिंग लाइक दैट, या उनके कोई बाद वाला हो, तो ऐसों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला वॉचफुली बिलमिरसाद, बहुत वॉचफुली, क्लोजली, बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो उन्हें पकड़ लेगा। एकदम जो है ना, अगर आप इसको ज़रा-सा आप अपने दिल के कानों को अगर ऑन करके इस बात को सुने, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं, मतलब मैं घात लगा के रब बैठा हुआ है। और हम लोग बात जब करने पे आते हैं तो हम कहते हैं ये दुनिया में इतना ऑपरेशन है, अल्लाह किधर है? और हम जब ये कहते हैं कि ये मुल्कों के नाम, हम लिस्ट जमाई हुई है हमने दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर, खुद अपने पार्ट का काम हम करते नहीं हैं। जिस तरीके से सയ്यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम खड़े हुए थे तो उनके लिए ये आयत आई थी, तो उनको यही कहा जा रहा है ना कि उन्हीं को बताया जा रहा है ना कि ये अ, पिछली सिविलाइजेशन की सारी बात बता के कि किस-किस तरीके से अ, मैंने उन सारों को घात लगाई और फिर कोड़ा बरसा दिया उनके ऊपर, खत्म कर दिया। और फिर आप ये देखिए कि अगर आप अब हम वापस उस जिस्ट की तरफ आते हैं जो मैं आपको कंटिन्यूअस कहती रही हूँ, क्योंकि मुझे यही होता है आप लोग क्लास ड्रॉप कर जाते हैं बहुत ज्यादा लोग। तो आप इसको अंडरस्टैंड जरा करिए। अब काफी सारी एक एक्सप्लेनेशन है पूरी ना सारी आयत की, एक जो जो अब तक हमने पढ़ा उससे एक डिफरेंट व्यू पॉइंट बिल्कुल, आप उसको थोड़ा समझिएगा कि आद, समूद, फिरौन ये सब पावरफुल थे और सब ऑपरेसिव थे। जैसे फिरौन की मिसाल ले लें, वो बच्चों को, उसके बारे में आता है ना कि युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, यानी वो इन बनी इसराइल, जो ज्यूज थे, बनी इसराइल थे, इनके बच्चों को मार देता, औरतों को छोड़ देता, औरतों को एनस्लेव कर लेता था और फिर वीक को प्रेस करता था। फिर यूज ही जो मूसा अलैहिस्सलाम वाला खास पैरो था, वो तो क्या करता था कि वो ही यूज्ड टू स्प्लिट पीपल इन ग्रुप्स। स्पेशल उसके पास टेक्नीक थी ये कि लोगों को जोड़ के ताकत नहीं बनने देना, उनको स्प्लिट करके रखना है ताकि ये यूनाइट होके हमारे खिलाफ खड़े ना हो जाएं। तो स्पेशल टेक्निक्स करके तो यूनिटी को हमेशा तोड़े रखता था। अपने आप और अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए वो हर तरह का ऑपरेशन करता था और कोई उसे रिमूव नहीं कर पाता था। तो आज जब हम लोग अ, आज की वर्ल्ड पावर की बात करिए, उस वक़्त की वो वर्ल्ड पावर ही था ना। ये सिविलाइजेशंस जो चली हैं जिनका ज़िक्र आया है, अपने-अपने वक़्त की वर्ल्ड पावर्स थीं। अपने-अपने वक़्त की बहुत बड़ी पावर्स थीं। तो इस वक़्त आप अगर देखिए, आज हम अपने ऊपर ये बात ले आते हैं अब। तो वर्ल्ड पावर
जो परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैं, दे कैन वीटो और ब्लॉक एनी रूल और एनी लेजिस्लेशन। अगर कोई भी चीज वर्ल्ड पावर जैसे अमेरिका हो गया, जिसमें इसराइल है, जिसमें ये जो भी कंट्रीज इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं एलाइज के नाम पे और सिक्योरिटी काउंसिल में है, ये सारे इनके खिलाफ जब कोई भी चीज इनके इंटरेस्ट के खिलाफ कहीं हो रही होती है, तो ये क्या करते हैं, ये उसको वीटो कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इन सब के पास पावर्स हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो जहन में यही आता है ना, आज हम इनके अगेंस्ट, हमारे जहन में ये आता है कि हम क्या कर सकते हैं इनके अगेंस्ट। जहन में आता है कि लिटरली ये थॉट हम सबके दिमाग में आता है कि दी स्टैंडर्ड्स आर देयर टू स्टे। ये तो अब जैसा अब सिचुएशन दुनिया में कायम हो गई है ना, इसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब ये तो ऐसे सारे कल्प्रेट और सारे, कोई एक तो फेरो है नहीं, या कोई एक एक आध का टाइम तो नहीं है, यहाँ तो सारे कल्प्रेट्स इकट्ठे बैठ के जम के इन्होंने काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से कह लें या जिस नाम से भी कह लें, और वो किसी भी चीज जरा से उठ के कुछ करती है तो उसको वीटो करके साइड पे कर देते हैं, कोई लॉ लेजिस्लेशन पास नहीं होने देते, कुछ भी नहीं। तो जहन में आता है ना कि बस ये तो अब ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं होने वाला। ये डार्कनेस, ये रात, ये मुसलमानों का जवाल तो ऐसे ही रहेगा। ये बेइज्जती और जिल्लत तो हमारे लिए लिख दी गई है। दिस डार्कनेस विल प्रिवेल। अब हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और फिर जब हम ये स्पेशली स्पेशली जब इन्हीं टायरेंट्स के हाथों, इन्हीं वर्ल्ड पावर को टायरेंट्स के तौर पे देखते हैं कि इसराइल पैलेस्टाइन में क्या कर रहा है, इंडिया इंडियन मुस्लिम्स के साथ और कश्मीर में क्या कर रहा है, चाइना उगर्स मुस्लिम के साथ क्या कर रहा है, और पावर्स अथॉरिटीज कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, यमन में क्या हो रहा है, मुसलमान मुसलमान के ऊपर जो कर रहे हैं, रशिया में ये जो क्या कहते हैं, रशिया, हाँ रशिया क्या कर रहा है सीरिया में, मतलब नेम इट, इन देयर सो मेनी प्लेसेस। और वो तो सब जगह पे यही जहन में आता है ना कि नहीं, ये डार्कनेस नहीं खत्म होने वाली। और फिर इस कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखें साथ साथ कि ये अ, कुरैश में जो अबू जहल था, वलीद बिन मुगीरा, अबू लहब, उमैया बिन खल्फ, शुरैक, अखनस बिन शुरैक, अबू सुफियान लेटर रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम ले आए थे। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे अपने टाइम में अपने आप को क्या समझ रहे थे कि वी आर द अल्टीमेट माइट। और वो फिर वो जो तीन शुरू में मैंने बताए, थ्री टाइप ऑफ पीपल, उन सारों को टॉर्चर कर रहे थे, उनको एक्यूज कर रहे थे, उनको डिफेम कर रहे थे, रिस्पेक्ट वालों को जलील कर रहे थे, सारे साहबा कराम को, सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत। So when you see all this and all powerful seems to be staying and darkness is prevailing all around, seems like that oppression regime is there to stay. ऐसे ही फीलिंग आती है ना, ये जो ऑपरेशन की रिजीम है, ये तो रहेगी। अभी पाकिस्तान में देख लें, और जगहों पे देखें, लगता है कि मतलब ना खत्म होने वाला ऑपरेशन है, जो कि हटेगा नहीं। और फिर ऑपरेशन की टाइप्स आगे देखें, और फर्दर अगर इस ऑपरेशन लफ्ज को ही फर्दर सोसाइटीज के अंदर पेनिट्रेटिंग, घरों के अंदर बिल्कुल छोटे लेवल पे सोसाइटीज में देखें, तो वो जो हम पहले देख चुके हैं, सोशल ऑपरेशन अगेंस्ट सर्टन ग्रुप्स, डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन सप्रेशन, पूरे पूरे खानदानों को स्लेवरी के नाम पे वडेरे जागीरदार जो नस्ल दर नस्ल कुछ जमीन या कुछ कर्जे के एवज वो पूरी पूरी नस्लें क्या क्या कर रही होती हैं, और कैसे कैसे फिर उनकी बच्चे बच्चियों को मार दिया जाता है। अभी रिसेंट अभी जो चल रहा था अभी पाकिस्तान में अभी, गरीब का हक मारना, यतीम का हक, रिश्वत, मतलब नेम इट, कोई एड जाती है, कोई जलजला आ जाए या कोई सैलाब आ जाए, कोई एड इन गरीब मुल्कों में जाती है, तो थोड़ी बहुत एड दी जाती है और एड खा ली जाती है। इवन पावरफुल जो है वो क्या करते हैं, वो नीचे सोसाइटी और जो गरीब लोग होते हैं, जो मुस्तहक होते हैं, उन तक जाने नहीं देते।
एड तक उन तक नहीं पहुँचने देते। Such oppression and darkness। और सहाबाए किराम ये दुख लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे। यही हाल मक्का में चल रहा था। ऑपरेशन की आखिरी हद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साथ टेक लगा के बैठे हुए, हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में बैठे थे और काबा के साथ टेक लगा के बैठे थे और कुछ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए डरते-डरते, क्योंकि हालात ये थे कि अब इनका मिलना भी मुश्किल था। क्योंकि अब ये 2 साल गुज़र चुके हैं ना, तो हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि अक्सर यूजुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि अक्सर जो स्कॉलर्स हैं वो इस तरह ही कहते हैं कि जैसे पहले 3 साल तो ओपन कोई बात होती ही नहीं थी। होती थी, मिलना-मिलाना होता था, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ना या नमाज़ का काम नमाज़ पढ़ते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीमात लेते थे, वो दारुल अरकम में लेते थे। बहरहाल ओपनली भी होते थी। तो अ अ सहाबाए किराम डरते-डरते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे साथ क्या हो रहा है? अलैहिस्सल्लाहु रब्बना हक्कन, अलैहिस्सल्लाहु रब्बना हक्कन, क्या हमारा अल्लाह हमारा रब हक नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, है ना, क्यों नहीं है? क्या तुम इस पे शक करते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव तशक्कून बिज़ालिक, क्या तुम इस पे शक करते हो? सहाबाए किराम ने कहा, नहीं, नहीं, हम सिर्फ कन्फर्म कर रहे हैं। हम सिर्फ एक कन्फर्मेशन चाह रहे हैं। फिर सहाबा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप इसमें कोई शक है? सहाबाए किराम ने कहा, वल्लाह ऐसा नहीं है, हमें कोई शक नहीं है। सहाबाए किराम ने फरमाया कि अगर अल्लाह हमारा रब है, अगर आप हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो फिर हम इस मुश्किल तकलीफ में क्यों हैं? हम इतनी मुश्किल और इतने दर्द और इतने टॉर्चर से क्यों गुज़र रहे हैं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह क्या आप यानी सहाबाए किराम अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रहे हैं कि क्या आप अल्लाह से हमारे लिए फ़तह विक्ट्री माँग सकते हैं या कामयाबी माँग सकते हैं कि हम पा लें नुसरत और फ़तह याब हो जाए? असल क्या बात थी, सहाबाए किराम एंड तक देख नहीं पा रहे थे। आज सहाबाए किराम तो ख़ैर बहुत स्टार्ट में थे, आज तो हम सारा कुछ पढ़ने, पढ़ाने के बावजूद, पूरा कुरान, इतना कुछ जानने के बावजूद, हम भी उस एंड को नहीं देख पा रहे होते, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत हर वक़्त एक तकलीफ़ और बेयकीनी की कैफ़ियत में रहते हैं। एक ये सहाबाए किराम के ऊपर भी ये डेस्परेट सिचुएशन आई। जब असहाब निकलते बात करने के लिए इस्लाम की, तो उन्हें टॉर्चर किया जाता। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते तो अबू लहब उनको फ़ॉलो करके सूरह मसद में मैंने आपको बताया था ना, सूरह लहब या सूरह मसद जो भी नाम ले लें, उसमें मैंने बताया था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अबू लहब निकलता था और जहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके दावत देते, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठ के जाते तो अबू लहब वहाँ जाके कहता कि ये मेरा ही भतीजा है, आप सब लोगों को पता ही है। तो नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत-गलत बातें बोलता है कि ये तो मजनून हो गया है नाउज़ुबिल्लाह और ये तो ऐसा है, तो ये तो ऐसा है, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, ये जो भी बातें करके गए यानी वो गलत हैं। तो आप इमेजिन करें कि एक पावर एंड अथॉरिटी वाला लीडर आके कोई बात बोले, तो वो मानी जाएगी या कैसे? तो कितना मुश्किल होता होगा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दो वो सादिक और अमीन थे, लेकिन उनकी ही फैमिली, सारे अथॉरिटी वाले लोग उनको इनकार करके उनकी हर दावत के ऊपर क्रॉस कर रहे थे ताकि लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम और फ़ज़ल। तो ये किस कदर मुश्किल टाइम था आप सोचें, रसूलुल्लाह के लिए, सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, असहाब के लिए। ऐसे में ये सूरत नाज़िल होती है सूरत फ़ज्र, ऐसे में ये नाज़िल होती है वल फ़ज्र, कसम है फ़ज्र की, दिस डार्कनेस विल गो अवे यानी इस डार्कनेस से एक्सप्लोड होके सुबह निकलेगी, कसम इस बात की है। There will be time when this fajr will break out. It is going to blast out of the night. ये खत्म होगी। अब आपके पास एक ऐसा ऐसा कोई शख्स हो जो
اندھیرے اور تاریکی اور مشکل اور اپریشن میں رہتے 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 آ کے دل برداشتہ ہو کے اور آ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ والفجر، تو اس میں اب نماز فجر کا ذکر تو نہیں آئے گا نا، پھر تو یہی ہے نا کہ نہیں، والفجر قسم ہے کہ دس مارننگ ول بریک آؤٹ، یہ صبح ایکسپلوڈ ہو کے رہے گی، یہ رات کی تاریکی ہمیشہ نہیں رہنے والی. اور یقینی بات ہے کہ دیر ول بی اے ہارڈ ڈیفیٹ آف دس نائٹ، اس رات کی ڈیفیٹ ہوگی، اس کو ہارنا پڑے گا. ہاں وہ مشکل ہوگی، ہاں وہ طویل ہو سکتی ہے، لیکن اس نے ہونا ضرور ہے، کیونکہ فجر ہو کے رہے گا، ایکسپلوڈ ہو کے رہے گی. دس oppression, دس tyranny that you see in front of you, it will be finished. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتیں، راتیں 2 ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 8 ہوں، 10 ہوں، جتنی بھی ہوں. نائٹس کین بی مینی. ذرا امیجن کریں کیا آیت ہے، سبحان اللہ. مطلب میرا دماغ اس ان چند آیات پہ نا عجیب طریقے سے کسی اور وے پہ چلا جاتا ہے بالکل، کہ نائٹس ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کیسے، کہ جیسے عاد کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا نا، تو عاد کی ایک لمبی آپریشن کی ایک نائٹ تھی. عاد یعنی اوپریسر تھے، تو جو وہ جس کو اوپریس کر رہے تھے ان کے لیے کیا تھی، عاد کی سیولائزیشن ایک پوری رات کی طرح تھی. سمود کی سیولائزیشن ایک پوری رات کی طرح تھی. فیرو یا خاص فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فیرو، اس کی سیولائزیشن، اس کا جو تھا وہ رول کا جو ڈیوریشن تھا وہ ایک رات کی طرح تھا. یو ایس ہو، انڈیا ہو، مودی ہو، یا چائنا ہو یا اسرائیل ہو، یہ ساروں کے ساروں کا ایک ٹائم ہے، ایک 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 ان کا گیون ٹائم ہے، وہ رات ختم ہونی ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ راتیں زیادہ ہوں یا کم ہوں، 10 ہوں، جو بھی کچھ ہو. اور وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، دیز نائٹ، یہ جو تنگی اور اپریشن کی راتیں ہوتی ہیں، ان کا نمبر کچھ بھی ہو، ایون ہو یا آڈ ہو، جفت ہوں یا طاق ہوں، 10 ہوں یا 9 ہوں، جو بھی کوئی نمبر ہے، بات اصل میں کیا ہے، نمبر جو بھی ہو، ان راتوں نے نہیں رہنا، ان راتوں نے گزر جانا ہے. اور وہ ہمیں کون سی آیت سے پتہ چلتا ہے، وہ ہمیں اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھی آیت، آیت نمبر 4 جو ہے، واللیل اذا یسر، اور رات کو تو گزر ہی جانا ہے. رات تو آئی ہی اسی لیے ہے کہ وہ چلتی 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 نکل جائے گی، اور رکنے کے لیے نہیں ہے. اور یہ وہ ایمان ہے جس کو ہمیں تھامنا ہے، جس کو ہمیں لینا ہے. یہ ہیں وہ ہنٹس، یہ ہیں وہ ہیئر آر دا ہنٹس. قریش اور اہل قرآن کو، اور سب کو جو قرآن کے سب سے پہلے سننے والے تھے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر سب کو، کہ there were more oppressive being than Quraysh, and the time of these regimes were so long. جو regimes آتی ہیں، جو پوری پوری civilizations ایک قسم کی regimes کی طرح ہوتی ہیں، جو صرف oppress ہی کرتی ہیں، وہ تو بڑی بڑی لمبی لمبی centuries and centuries ٹائم ہوتا ہے بعض کا. And there were so many of them. And Allah says, I took care of them all. 5-6 آیات میں سب کی سٹوری ایز اے civilization mention کر کے کہ یہ different different civilization تھی. I am the one who caused the tyranny of Pharaoh fade away. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے سب کو فیڈ اوے کر دیا. کون بچا؟ ایک نشان عبرت کی طرح.
کوئی समंदरों में दरियाओं में डूबा तो कोई चीखें सुन के और कोई ज़मीन में धँसा दिया गया और किसी पे किस तरह का अज़ाब और किसी पे किस तरह का अज़ाब। Everything has been faded away by Allah subhanahu wa ta'ala, all the power, all the tyrannies, all the oppression. और अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि टायरनी शुड नॉट बी प्रिवेल्ड फॉर लास्ट। तो अब यहाँ से अब आप इमेजिन करें कि हमें भी आज लगता है ना कि हमारे इर्द-गिर्द जो वर्ल्ड पावर और जो टाइट क्लचेस हैं वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने वालों के, हम शायद कभी भी ये इस डार्कनेस को कभी खत्म ना कर सकें। लेकिन अल्लाह के यहाँ फ़ॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट काम करता है। जैसे सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम खड़े रहे, उन पे तकलीफें आई, वो दर्द में गए, वो भी आके बोल पड़े। उन्होंने भी आके ये लफ्ज़ सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे कि अलैहिस्सल्लाहु रब्बना हक़्क़न, क्या हमारा अल्लाह हमारा रब रब बरहक नहीं है? क्या वो नहीं देख रहा हमें कि हम किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं? तो इंसान इस जगह पे चला जाता है, लेकिन फिर ये आयात हैं, वो सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सहारा देना है कि जिसमें क्या कहा जा रहा है कि आप सहाबाए किराम को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया कि आप लोग जल्दी कर रहे हैं, आपको जमना है। क्या हमने पीछे आयत नहीं पढ़ी सूरह मुज़म्मिल की वस्बिर अला मा यक़ूलून कि सब्र करें उस पे जो वो ये कहते हैं, यानी जमे रहें, हक़ पे जमे रहें। वलिरब्बिका फ़स्बिर, जो रब की तरफ से आ रहा है उस पे जम जाना है, उसको पकड़ लेना है, उसके सिवा को छोड़ना है। ये प्रैक्टिस करनी है। बी परसिस्टेंट ऑन एवरीथिंग गुड दैट यू आर डूइंग। तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, तफसीर खत्म करने से पहले ये सवाल भी मैं उठा दूं पहले, इससे क्या आप एंड में पूछें कि फिर जो सारी तफासिर जो और तफासिर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मानी हैं, क्या वो मानी नहीं निकल सकता? मैंने थोड़ा सा पहले भी हिंट किया था, नहीं मानी निकल सकता है, वो बिल्कुल निकल सकता है। लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट में सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखेंगे तो हम एक पूरा ओवरव्यू लेके उसकी रूह समझेंगे ना। हम किसी भी चीज को, मसला ही ये हुआ है कि कुरान की जब हमने रूह समझने के बजाय क्या किया है, हमने उसको बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया। कसमों को इस तरह समझा ही नहीं जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि इन कसम से कोई अक्ल वाला हिंट लेके ये समझ सकता है कि ये क्या चल रहा है। तो इस पूरा का पूरे का ओवरव्यू लें, वो आयात मानी बहुत बड़े-बड़े मुफस्सिरून ने बहुत मुख्तलिफ-मुख्तलिफ बातें लिखी हैं। मेरी ऐसी औकात नहीं कि मैं किसी के बारे में ये बात कह सकूँ कि ये बात उन्होंने क्यों लिखी या नहीं लिखनी चाहिए थी या दुरुस्त नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने तो सरी तौर पे बहुत गलत चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन बहरहाल जो हमने चंद बातें बयान की वो आपको बहुत कॉमनली मिलेंगी जो शुरू में हमने बयान मतलब जो शुरू में ज़िक्र किया जिसका मैंने। तो वो भी ठीक है, रिस्पेक्टफुल, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखिए, जिन पे नाज़िल हो रहा था कुरान उनके साथ कॉन्टेक्स्ट प्लीज़ मिस ना किया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से हटाएँ तो आपको फिर तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे। सहाबाए किराम को अगर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम को अगर पीछे से हटा के सिर्फ़ अपनी राय की तफसीर में राय पे आ जाएँ कि सिर्फ़ राय ये कह रही है या राय वो कह रही है, तो फिर तो राय बहुत दूर भी लेके जा सकती है ना। तो कोशिश हमारी ये है कि हम आयत को इस कॉन्टेक्स्ट में समझें। जब आप उस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, तो फिर होगा ये कि फिर हमें वो हिम्मत मिलेगी जो एक्चुअली इन आयत में एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी मौजूद है और हमारा कनेक्टिविटी टू अल्लाह, अल्लाह एज़ सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ गोइंग टू बी विद अस ऑल द टाइम। बिकॉज़ आप इमेजिन करिए, आज मैंने रब के ऊपर बात नहीं की। आपने देखा है रब का लफ्ज़ रब का नाम कितनी दफ़ा आया है? फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। उससे पीछे आप देखिए कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद।
تو جو رب کا نام آیا اس کو بھی آپ نوٹ کر کے دیکھیں، اور پھر رب کے جو اتنے ڈھیر سارے معنی ہم نے پڑھے تھے، اگر آپ کو یاد ہیں ابھی تک تو، اور نہیں یاد تو جا کے دیکھیے، ہم نے اسپیشلی بہت کچھ ایک دن اسپیسیفکلی لکھا تھا، 5-6 معنی اکٹھے کیے تھے، تو پھر بہت لمبی بات نکل جاتی ہے، لیکن میں صرف اوور ویو کے طور پہ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اصل روح جو ہے نا ان آیات کی وہ یہ ہے، وہ اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کریے کہ یہ فجر کی نماز کی بات نہیں ہو رہی، یہ 10 راتوں 10 دنوں کی رمضان کی بات نہیں ہو رہی، یا وتر کی نماز کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو صرف ایک ہنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے، اصل روح کیا ہے، اصل سورس کیا ہے، جو چیز ہمیں دیکھنی ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں جو آیت نمبر 6 سے ہے، علم تارا، آیت نمبر 6 سے، کہ اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ، ان سویلائزیشنز کے ساتھ کیا کیا، رجیمز تھی وہ بھی اپنے اپنے دور کی، سب رجیمز کو اللہ خود ہی دیکھ لیں گے، لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتے، یہ تو اگر خود اللہ دیکھ لیں گے تو پھر یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا پھر بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والی زندگی جینی ہے، ہمیں ان کی طرح کھڑے ہونا ہے، ہمیں ان کی طرح اس مشن کو لے کے چلنا ہے، اور اس وقت جب راستے میں تکلیفیں آئیں گی، اس وقت راستے میں جب خون دینا پڑے گا، جان دینی پڑے گی، اولادیں نسلیں دینی پڑیں گی اللہ کے نظام کے قیام کے لیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ ہم اس بات سے بری ذمہ ہوں گے کہ یا اللہ، ہم نے پوری آپ کے دین کے قیام کے لیے اپنی جان لگا دی، اپنی جتنی پاور کر سکتے تھے لگائی ہے، اب الٹیمیٹ مقصد جو ہے، الٹیمیٹ اس کو مائٹ کب ملے گا، اسلام اپنی پوری پولیٹیکل مائٹ میں، اپنی پوری انٹلیکچوئل مائٹ میں، اپنی پوری اس میں کب آئے گا، یہ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ہم وی ہیو ٹو پش the mission of سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مشن کے لیے ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنا اولاد، اپنا گھر بار، ہر چیز لگانے کے لیے اپنی نیتیں باندھ کے چلنا شروع کر دیں، اور یہ سمجھیں گے تو ہی بات بنے گی، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بس اب لاسٹ بات کیا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اور میں، ہم لوگ وہ جو طغا والے تھے، وہ جو سرکشی کرنے والے تھے، وہ جو سویلائزیشنز اپنی منمانیاں کر کے، اپنی مرضی کی ظلم زیادتیاں کر کے، آج بھی ارد گرد ہمارے نظر دیکھ لیں اٹھا کے، اپنی مرضی کرنے والی کی والے لوگ نہیں ہیں، حکومتیں نہیں ہیں، ہر طرف تو یہی ہے، تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، بات یہ ہے، ہم کدھر کھڑے ہیں، یا ہم حق کے ساتھ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور میں پھر جس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میرا اٹھنا بھی انہی کے ساتھ، میرا خاتمہ بھی انہی کے ساتھ، اور الٹیمیٹلی میرا اٹھایا جانا بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عقل کریں، یہ جو دی ہجر کا لفظ آیا تھا، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عقل کریں اور سوچیں کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ہم اس کے اوپر جم جائیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تھام کے، اس پہ جم کے، اس پہ کھڑے ہونے کی تمنا، تڑپ، محبت اور بیبی سٹیپس ہی اٹھا رہے ہیں، اللہ ان کے سامنے، اللہ ان کے پیچھے کھڑا ہے، اللہ ان کے پیچھے خود کھڑا ہے، لیکن آپ کو کھڑے ہونا ہوگا، مجھے کھڑے ہونا ہوگا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو بس تو پھر ہم کوئی بھی ٹام ہیری جیک ہوئے، پھر ہم کچھ بھی ہو گئے، لیکن ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے لائق نہیں۔ تو یہ ہے ہماری ان آیات کا جسٹ، باذن اللہ تعالی ہم
थोड़ा सा इसका क्विक सी समरी लास्ट नेक्स्ट टाइम करते हुए फिर हम अगली आयत पे जाएंगे। और जो अगली आयत हैं वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कवर करेंगी, बहुत बड़ा, वन ऑफ द मेजर माइलस्टोन ऑफ कुरानिक अंडरस्टैंडिंग, बहुत अहम है। मैं जरूर कहूंगी कि आप लोगों को कन्विंस किया करें कि आए क्लास के अंदर, क्योंकि ये सूरतें जो है ना, इनमें हर सूरा में कोई ना कोई दो तीन ऐसे अकीदे के पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत अहम है। तो अल्लाह के यहाँ टेस्ट क्या है, बला किसे कहते हैं, ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम देखेंगे। बहुत सूरत मेरे नजदीक सबसे मतलब अहम तरीन जो एक डेफिनेशन है वो इस सूरत के अंदर मिडल में वस्त में डिस्कस हो रही है, जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बिस्मिल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ईमान आफियत बरकत वाली जिंदगी अता करे और इस कुरान को हमारे सीने का नूर बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।